اب آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین لفظ اولل الباب کو جاننا بہت ضروری ہے، جس سے یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ کون ہیں جو اولل الباب ہیں اور وہ کون ہیں جو اولل الباب نہیں ہیں۔ اولل الباب پہلے لفظ آ جاتا ہے اولی، جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ایک حرف پر مشتمل ہے الف، اور دوسرا لفظ 3 حروف پر مشتمل ہے ولی۔ ناظرین جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف آ جائے جو کہ اس لفظ کے اصلی حروف میں سے نہ ہو تو الف اسے سوالیہ بنا دیتا ہے۔ مثلا اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے، آپ دن میں کئی بار سنتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ الفاظ بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یا اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ اکبر کے یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر میں نہ صرف یہ سوال ہے کہ اللہ کیا ہے، بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اللہ کیا ہے۔ تو ان میں پہلا لفظ ہے اللہ، اللہ کی ہے پر پیش ہے جو اسے حال کا صیغہ بنا دیتی ہے۔ یوں اللہ کے معنی بنتے ہیں اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ کیا ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ تو آگے اسی سوال کا جواب ہے کہ اللہ کیا ہے۔ جواب کیا ہے؟ اکبر۔ یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، پہلا لفظ ایک حرف الف اور دوسرا لفظ 3 حروف کا مجموعہ کابارہ۔ اس کی ضد ساگارہ ہے، جس کے معنی وجودی اعتبار سے چھوٹے ہونے کے ہیں، یعنی ساگارہ کہتے ہیں وجودی اعتبار سے چھوٹا ہونا، اور کابارہ کے معنی ہے وجودی اعتبار سے بڑا ہونا۔ کعبہ کے شروع میں الف آ جاتا ہے اور لفظ بن جاتا ہے اکبر، جس کے معنی بنیں گے کیا ہے بڑا۔ یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے اللہ اللہ ہے تو سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں سے کلام کرتے ہوئے، انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے۔ تو ظاہر ہے انسانوں کو نہیں علم کہ اللہ کیا ہے، تو پھر وہ آگے سے یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ کیا ہے اللہ۔ تو پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اکبر، یعنی دیکھو غور کرو کیا ہے بڑا، جو بڑا ثابت ہو جائے وہی اللہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں اللہ ہے تو دیکھو کیا وہ بڑا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے تو پھر غور کریں کہ اس سے تو درخت بڑا ہے، یعنی وہ تو بڑا ثابت نہیں ہوتا، اس سے تو درخت بڑا ہے، تو اس کا مطلب کیا درخت اللہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، درختوں سے تو پہاڑ بڑے ہیں۔ تو پھر کیا پہاڑ اللہ ہیں؟ نہیں، پہاڑوں سے تو سمندر بڑا ہے۔ تو کیا سمندر اللہ ہے؟ نہیں، سمندروں سے تو زمین بڑی ہے۔ تو کیا زمین اللہ ہے؟ نہیں، زمین سے تو سورج بڑا ہے۔ تو کیا سورج اللہ ہے؟ نہیں، سورج سے تو نظام شمسی بڑا ہے۔ تو کیا نظام شمسی اللہ ہے؟ نہیں، نظام شمسی سے بڑی تو کہکشائیں ہیں۔ تو کیا کہکشائیں اللہ ہیں؟ نہیں، کہکشاؤں سے تو کائنات بڑی ہے۔ ایک آسمان، یونیورس، ایک آسمان بڑا ہے۔ تو کیا ایک آسمان کائنات بڑی ہے؟ نہیں، کائنات ایک آسمان سے تو دوسری کائنات یعنی دوسرا آسمان بڑا ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو تیسرا آسمان بڑا ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو چوتھا آسمان بڑا ہے۔ کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو 5واں آسمان، 5ویں کائنات بڑی ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو 6واں آسمان، 6ٹھی کائنات بڑی ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو 7واں آسمان، 7ویں کائنات بڑی ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے بڑا تو کل کا کل بطور ایک وجود ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ تو ظاہر ہے جو بڑا ثابت ہو جائے وہ اللہ ہے۔ اللہ انسانوں سے کلام کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے اللہ ہے۔ تو انسان آگے سے سوال اٹھا رہے ہیں کیا ہے اللہ، کیونکہ کسی کو علم ہی نہیں۔ وہ آگے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہے اللہ، تو آگے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا جواب دے رہے ہیں اکبر، کیا ہے بڑا،
यानी जो बड़ा साबित हो जाए वो अल्लाह है। तो नाज़रीन, आपने जाना अल्लाह अकबर के मानी क्या है। ना सिर्फ इसमें सवाल है अल्लाह है और अल्लाह क्या है, बल्कि इस सवाल का जवाब भी मौजूद है कि अल्लाह क्या है। और नाज़रीन, वो जात जो अल्लाह है, जिसे अल्लाह कहा जा रहा है, दुनिया में बाज लोग उसे गॉड कहते हैं, बाज लोग ईश्वर कहते हैं, बाज ब्रह्मा कहते हैं, बाज एली कहते हैं और बाज इनके अलावा और मुख्तलिफ अल्फाज से पुकारते हैं। यूं आप जो पीछे बात की गई उसमें लफ्ज अल्लाह को अगर ईश्वर से भी रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ईश्वर ही की बात हो रही है। कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ गॉड कहते हैं, कुछ ब्रह्मा कहते हैं, तो ये उसी ब्रह्मा की बात हो रही है जिसे कुछ अल्लाह से पुकारते हैं, कुछ ईश्वर से पुकारते हैं, कुछ गॉड से पुकारते हैं, कुछ एली लफ्ज से पुकारते हैं। अब ना आपको यह बिल्कुल वाज़ेह पता चल गया, यह आपने जान लिया कि जब अलिफ किसी लफ्ज के शुरू में आ जाता है तो वो उसे सवालिया बना देता है और अगला लफ्ज उसी सवाल का जवाब देता है। बिल्कुल इसी तरह उलिल अलबाब, इसमें ना सिर्फ सवाल है कि उलिल अलबाब कौन है, बल्कि इस सवाल का जवाब भी मौजूद है कि उलिल अलबाब कौन है। अगर अलिफ किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो उसके क्या मानी बनेंगे, ये तो आपने जान लिया कि वो उसे सवालिया बना देता है। अब अगला लफ्ज है वली, और वली के मानी है अपने मकसद, अपने मिशन, अपने टारगेट वगैरह में किसी को अपना मावनतकार बनाना, जिससे किसी भी सतह पर मावनत हासिल की जाए, उसे अरबी में वली कहा जाता है। अब आते हैं पूरे लफ्ज की तरफ। उली, जिसके मानी बनते हैं क्या है वली, यानी क्या है वो जिसे अपने मकसद में, अपने मिशन में अपना मावनतकार बनाया जा रहा है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने मतलूब के हसूल के लिए किससे मावनत हासिल की जा रही है, किसे मावनतकार या सहूलतकार बनाया जा रहा है। आगे इसी सवाल का जवाब आ जाता है अल बाब। यह भी दो अल्फाज का मजमुआ है, पहला लफ्ज अलिफ लाम और दूसरा लफ्ज बाब। जब भी किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है तो अलिफ लाम मखसूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मखसूस शय का, किसी खास शय का जिक्र किया जा रहा है, ना कि आम शय का। और बाब कहते हैं दाखिल होने और निकलने के मकाम को। वो मादी भी हो सकता है, गैर मादी भी हो सकता है और वो शौरी भी हो सकता है। कहां मादी निकलने और दाखिल होने के मकाम का जिक्र है और कहां गैर मादी और कहां शौरी, इसका फैसला बात का पस मंजर करता है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि रात और दिन का इख्तिलाफ उलिल अलबाब के लिए आयात हैं। अब नाज़रीन, जो उलिल अलबाब हैं उनका कहना और उनका समझना यह है कि जो वो अपनी आंखों से मनाजर देख रहे हैं, जो मनाजर वो अपनी आंखों से देख रहे हैं रात और दिन के बारे में, असल हकायक ये नहीं है। असल हकायक कुछ और हैं जो कि उनसे पोशीदा हैं और वो उस वक्त तक नहीं जाने जा सकते, उस वक्त तक सामने नहीं आ सकते जब तक कि इन आयात में गौर फिक्र नहीं किया जाता, इनकी गहराई में जाकर इन्हें जान नहीं लिया जाता। तो नाज़रीन, यहां उलिल अलबाब का पसे मंजर रात और दिन के इख्तिलाफ की हकीकत क्या है, इसको समझना है। और फिर जाहिर है समझा तो दिमाग से जाता है, समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए आंखें और कान और दिल वो बाब हैं जहां से मालूमात दिमाग तक जाती हैं। यानी कि दिमाग उस वक्त तक नहीं देख सकता जब तक कि आंखें खुली हुई ना हो। दिमाग उस वक्त तक कुछ नहीं सुन सकता जब तक कि कान खुले हुए ना हो, कानों का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। दिमाग तब ही आपको कोई नतीजा फराहम करेगा जब आप दिमाग को कोई मालूमात फराहम करेंगे, और दिमाग को मालूमात फराहम की जाती हैं तीन जराए से, आंखों, कान और दिल। अगर इन अबवाब को बंद कर लिया जाए, किसी भी मामले की हकीकत को जानने के लिए आंखों, कानों और दिल का इस्तेमाल करने के बजाय इनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, सुनी अनसुनी कर दी जाए, देखा अनदेखा कर दिया जाए, दिल मुर्दा अंधा हो जाए,
तो फिर ऐसे लोग उलिल अलबाब कैसे हो सकते हैं? जब उन्होंने बाब, हर वो दरवाजा जिस दरवाजे से दिमाग तक मालूमात जाती हैं, वो दरवाजा ही बंद कर दिए तो दिमाग तक मालूमात कैसे जाएंगी? और फिर दिमाग उन मालूमात को प्रोसेस करके असल नतीजे तक कैसे पहुंचेगा? ना दिमाग तक इन अबवाब के जरिए मालूमात जाएंगी, इंफॉर्मेशन जाएगी, ना ही दिमाग उन मालूमात को प्रोसेस कर पाएगा और ना ही वो किसी असल नतीजे पर, हकीकत तक पहुंचेगा। और नाज़रीन, ये बाब बंद कैसे किए जाते हैं? ये बाब इस तरह बंद किए जाते हैं कि किसी भी बात को अकीदा बना लेना, यानी किसी भी मामले में किसी बात को दिमाग में डालकर उस पर ताले लगा देना, उस पर ताला लगा देना, उसके लिए अपनी आंखों, कानों और दिल का बंद कर लेना कि अब इस मामले पर इसके खिलाफ किसी भी किस्म की ना तो कोई बात सुनी जाएगी, ना देखी जाएगी, ना दिल का इस्तेमाल करके गौर किया जाएगा। बात सुनी अनसुनी कर दी जाएगी, देखा अनदेखा कर दिया जाएगा, यूं उस पर गौर करने की नौबत ही नहीं आएगी, उस पर तफक्कुर करने की, उस पर सोचने की, गौर फिक्र करने की नौबत ही नहीं आएगी। और उलिल अलबाब, इनके बरक्स वो लोग जो अपने मिशन में, अपने मकसद में, जो कि किसी भी बात को, किसी नुक्ते को या किसी मामले को समझना मकसूद होता है, उसे समझने के लिए अपने इन रस्तों को, इन बाब को बंद नहीं करते, बल्कि वो हर लम्हे इन बाब को अपनी आंखों, अपने कानों और अपने दिल को खुला रखते हैं। इनका इस्तेमाल तर्क नहीं करते, वो अपनी आंखों और कानों को खुला रखते हैं और दिल से उस बारे में गौर करते हैं और दिमाग को तफक्कुर करने का मौका फराहम करते हैं। उनका कहना और मानना यह होता है कि हो सकता है कि कोई बात, कोई पहलू उनसे पहले पोशीदा रह गया हो, जिस वजह से जो नतीजा पहले उनके सामने आया या लाया गया वो हक ना हो, उसमें कोई खामी हो, कोई नुक्स हो, कोई कजी हो, कोई कोताही हो गई हो। इसलिए अगर इस मामले में कोई नई बात सामने आती है, कोई नई शय सामने आती है जो पहले सामने नहीं आई, तो इसको सुनने, इसको देखने, इसमें गौर करने में हर्ज ही क्या है? लिहाजा उसमें गौर करते हैं। अगर तो वो गलत साबित होती है तो मजीद इत्मीनान हासिल हो जाएगा, और अगर वो सच साबित होती है तो उस हवाले से जो नजरिया पहले से दिमाग में डाला हुआ था, दिमाग में मौजूद था, उसको दिमाग से बाहर निकाल फेंकेंगे और हक को तस्लीम करते हुए हक को दिमाग में दाखिल कर लेंगे। नाज़रीन, अब तक ये बात भी आप पर वाज़ेह हो चुकी कि उलिल अलबाब की जिद है अकीदा। अकीदे वाले लोग, अकीदा कहते हैं किसी भी बात को, किसी भी मामले को सच समझकर अपने दिमाग में डालकर उस पर ताला लगा देना कि अब इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना जाएगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए, इस पर ख्वाह कितने ही दलाइल सामने क्यों ना आ जाएं, ख्वाह ये गलत ही साबित क्यों ना हो जाए, इसके खिलाफ कोई दलील नहीं देखी सुनी जाएगी। यानी एक बात को कुल समझकर दिमाग में डालकर उस पर ताला लगा देना। अब ना ही उसे दिमाग से बाहर निकाला जाएगा, ना ही उसके मुकाबले पर कोई दूसरी बात दिमाग में आने दी जाएगी, ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो जाए। और उलिल अलबाब वो लोग जो किसी भी मामले या किसी भी बात के बारे में सामने आने वाले नतीजे को आखिरी नतीजा नहीं समझते, उसे कुल नहीं समझते, बल्कि वो उसे फिलहाल तो अपने दिमाग में जगह देते हैं, लेकिन साथ ही अपनी आंखों और कानों को खुला रखेंगे, दिल से गौर करते रहेंगे। अगर कल को कोई ऐसी बात या ऐसी शय सामने आती है जो उसे गलत साबित कर देती है या उसमें नुक्स साबित कर देती है, तो पहली बात को दिमाग से निकाल बाहर किया जाएगा और सामने आने वाले हक को तस्लीम किया जाएगा। यूं कभी भी किसी भी बात को, किसी भी नतीजे को आखिर नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस बारे में रासिख इल्म नहीं आ जाता। यानी ऐसा इल्म जो कि तमाम के तमाम सवालात के, इतराजात के दरवाजे बंद कर दे, जो कि हर लिहाज से मुतमईन कर दे, जिसके बारे में कोई भी इतराज ना उठा सके, कोई चाह कर भी इतराज ना उठा सके, वो आगे से लाजवाब हो जाए।